Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and our today's topic is Indigo, chapter number 5 in the book Flamingo. So let's begin the lesson. First of all, about the author. This lesson is written by Louis Fisher, who was born on 29 February 1896 and breathed his last on 15 January 1970. Was born in Philadelphia. Where is Philadelphia? USA. Philadelphia is in USA. He served as a volunteer in the British Army. एक स्वयंसेवक के रूप में अमेरिका में पैदा हुए स्वयंसेवक के रूप में काम करते हैं ब्रिटिश आर्मी में बिटवीन 1918 एंड 1920 1918 से 1920 के बीच में. फिशर मेड अ करियर एज ए जर्नलिस्ट और फिर उनका जो करियर वो चुनते हैं of a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for European and Asian publications. तो न्यू यॉर्क टाइम्स के लिए उन्होंने लिखा, सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा, कुछ यूरोपियन और कुछ एशियन पब्लिकेशंस के लिए उन्होंने लिखा. He was also a member of faculty at Princeton University, USA. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. So what is the book he has written? The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. So this is a newspaper in United Kingdom, Times Educational Supplement, nowadays TES. Now, line by line explanation. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, Louis Fisher tells us when he first visited Gandhiji, when he first met Mahatma Gandhi, when? In 1942 at his ashram in Sevagram in Maharashtra, in central India, where he had a residence from 1936 to 1948 till his death. He said, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. Gandhiji told him how he decided to chuck the British people out of India. It was in 1917. It started in 1917. Gandhiji returned from South Africa in 1915 and then after he starts different satyagraha movements. He had gone to the December 1916 annual convention. तो वो जाते हैं दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन एनुअल मीटिंग होती है एग्रीमेंट होता है of the Indian National Congress Party in Lucknow. Where? In Lucknow. There were 2,301 delegates, representatives and many visitors. बहुत सारे लोग आए हुए थे, representatives आए हुए थे. During the proceedings, Gandhi recounted. अब इन दोनों की बातचीत हो रही लुई फिशर और महात्मा गांधी की. गांधी जी remembered, recounted. A peasant came up to me looking like any other peasant in India. गांधी जी कहते हैं कि मेरे पास एक peasant आता है, एक किसान आता है, looking like any other peasant in India, similar to any other peasant in India, poor and emaciated, बिल्कुल lean and thin, दुबला पतला, and said, I am Rajkumar Shukla. और क्या बोला उसने कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. I am from चंपारण and I want you to come to my district. मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें, मेरे ज़िले पे चलें, मेरे स्टेट में चलें. And I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. गांधी जी कहाँ, गुजरात महाराष्ट्र में इनका क्षेत्र था. इन्होंने बिहार के बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं था, चंपारण के बारे में सुना नहीं था. इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज. वेयर वॉज इट लोकेटेड? इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नाउअडेज बिहार. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. अंडर द एंशिएंट अरेंजमेंट, ब्रिटिश काल में एक अरेंजमेंट था 15% अरेंजमेंट. वो 15% अरेंजमेंट क्या था? 3/20, 3/20. जो भी लैंड उनको मिलती थी अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, जो भी लैंड उनको मिलता था उसका 15% उनको कल्टिवेट करना पड़ता था इंडिगो. एंड दैट कल्टिवेटेड क्रॉप, दैट कंप्लीटेड क्रॉप, द एंटायर क्रॉप वॉज टू बी गिवन टू ब्रिटिश पीपल एज रेंट. Rajkumar Shukla was one of them. So Rajkumar Shukla was one of the
sharecropper. He was illiterate but resolute. Although he was illiterate, पढ़े लिखे नहीं थे, but he was determined. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. So that Rajkumar Shukla had come to the Congress session for complaining about the injustice of the landlord system. Where? In Bihar. And somebody had probably said, speak to Gandhi. और शायद किसी ने उनको बोला होगा कि गांधी जी से बात करो, गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर. कानपुर ब्रिटिश काल में कानपुर को कानपुर बोलते थे. एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो गांधी जी से बात हुई. गांधी जी ने कहा मुझे कानपुर जाना है, अलग अलग जगहों पे जाना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर. जहाँ भी गए शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला साथ साथ जाते हैं. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. गांधी जी फिर अपने आश्रम चले आते हैं अहमदाबाद. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ला जी साथ में चले आए आश्रम तक. पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप चलेंगे नहीं. ही वॉज डिटरमिन्ड, रेजोल्यूट. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड. गांधी जी को हफ्तों तक उन्होंने नहीं छोड़ा, पीछे लगे रहे बिल्कुल. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. उन्होंने कहा गांधी जी से, गांधी जी एक डेट फिक्स कर दीजिए कब आप चलेंगे. इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, persistence of purpose and story, Gandhi said, listening the story of that sharecropper Rajkumar Shukla, Gandhi ji said, I have to be in Calcutta on such and such date. इस तारीख को, फला फला तारीख को मुझे कलकत्ता में जाना है. कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. वहीं आइए, वहीं से चलते हैं. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi ji arrived. Months passed. After months, Shukla was sitting on his haunches at the appointed place in Kolkata where Gandhi ji arrived. He waited till Gandhi ji was free. He waited there till Gandhi ji became free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. और फिर पटना के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं. There Shukla led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद. ये वही राजेंद्र प्रसाद थे जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, who later became president of the Congress party and of India as well. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor human. राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे और जो नौकर थे राजकुमार शुक्ला को एक ह्यूमन समझते थे, रॉयल सर्वेंट या फिर गार्ड, who pestered, who bothered their master, जो उनके मालिक को बार बार परेशान करता था, to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion. That is why they allowed him to stay on the ground, to sit on the ground along with his companion Mahatma Gandhi, whom they took to be another peasant. What they thought? He was also another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops of his bucket pollute the entire source. लेकिन गांधी जी को उन्होंने कुएं से पानी लेने नहीं दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कुछ बूंदें गिर जाए उनकी बाल्टी से और पूरा का पूरा एंटायर सोर्स पोल्यूट हो जाए, कंटामिनेट हो जाए. दिस इज अनटचेबिलिटी. हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? उनको कैसे पता होता कि वो अनटचेबल नहीं थे? वो इतने बड़े लीडर थे. बिकॉज ऑफ दिस एविल, ये बहुत काफ़ी समय तक रही इंडिया में. एंड इट वॉज गांधी जी हु ट्राइड टू डिमोलिश इट. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur. Therefrom, Gandhi ji decided to go to Muzaffarpur, which was en route on the way, जो रास्ते में ही पड़ता था, to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. Imparting means giving. वो चाहते थे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना मुजफ्फरपुर से about Champaran and sharecroppers. That is why he went to Muzaffarpur, and therefrom he wrote a telegram. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur. मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर J.B. कृपलानी को उन्होंने एक टेलीग्राम लिखा. whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल. रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में ये लोग मिल चुके थे. The train arrived at midnight 15 अप्रैल 1917. ट्रेन आती है आधी रात को मुजफ्फरपुर स्टेशन पे 15 अप्रैल 1917 को. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. तो बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, J.B. कृपलानी भी आए थे उनको वेलकम करने के लिए. गांधी स्टेड देयर
फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो गांधी जी वहाँ प्रोफेसर मलकानी जो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे उनके घर में रहते हैं। एंड ही सेज इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। अब ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस ज़माने में कि किसी ऐसे व्यक्ति को एक सरकारी नौकर अपने घर में रखे, लाइक महात्मा गांधी, अ लीडर लाइक महात्मा गांधी। ये एक तरह का देशद्रोह था उनके लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए। गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन, टू शेल्टर अ मैन लाइक हिम। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. In smaller localities, in small cities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule who appeal for home rule, the government of Indians. The news of Gandhi's advent and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. गांधी जी आए हैं, उनका अराइवल हुआ, एडवेंट ऑफ गांधी जी, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू आउट मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. तो जो लोग थे शेयर क्रॉपर्स, किसान, कुछ पैदल कुछ किन्हीं साधनों से लाइक बुलक कार्ट, आने लगे उनसे मिलने के लिए, टू सी देयर चैम्पियन. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वो मिलते हैं उनसे, गांधी जी को, उनको मामला समझाने के लिए, टू ब्रीफ हिम. दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट. दे वर रिप्रेजेंटिंग दीज पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट्स. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस and reported the size of their fee. So they told Gandhiji everything related to that case. Not only that, they also told him about the large amount of the fees they charged to these sharecroppers. Gandhiji chided the lawyers for collecting big fee from sharecroppers. अब इस पे गांधी जी उनको डांटते हैं, फटकार लगाते हैं, एक तो बेचारे वैसे दबे कुचले हैं, ऊपर से तुम इतनी फीस चार्ज करते हो. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. उन्होंने क्या बोला कि मैं जो निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि अब हमें ये मामले, ऐसे मामले कोर्ट में नहीं ले जाने चाहिए. Taking such cases to the courts does little good. It is not beneficial at all. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. Such law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. उनके लिए real relief क्या है? डर से आज़ाद, फ्री फ्रॉम फियर. मोस्ट ऑफ द अरेबल कल्टिवेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन. जो लैंड थी, जो ज़मीन थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो बड़े बड़े प्लॉट्स में बटी हुई थी, एस्टेट्स में बटी हुई थी. ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, एंड हु वर द ओनर्स? इंग्लिश पीपल. एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स, और उस पर काम करने वाले कौन से लोग थे? इंडियन टीनेंट्स, किराए के किसान. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और जो सबसे बड़ी जो चीफ क्रॉप थी वो कौन सी थी? इंडिगो, नील. द लैंड लॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. जो लैंड लॉर्ड्स थे वो ज़बरदस्ती बोलते थे उनको उगाने के लिए 15% ऑफ देयर लैंड वट इंडिगो, ये 15% पे आपको केवल इंडिगो उगाना है. जैसे फसल तैयार होगी, एंटायर क्रॉप विल बी गिवन टू ब्रिटिश पीपल एज रेंट. दिस वॉज डन बाई ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसका लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता था कई सालों का. असल में क्या होता था, ज़मीन ही बेकार हो जाती थी. एक बार आपने इंडिगो प्लांट कर दिया तो उतनी ज़मीन फिर बेकार हो गई. अगर ऐसे 15% होता रहा तो आगे चल के 4-5 सालों में पूरी ज़मीन ही ख़त्म हो जाती थी. प्रेजेंटली द लैंड लॉर्ड्स लर्नेड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट. और फिर इन लैंड लॉर्ड्स को पता चलता है कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, डेवलप कर लिया है. दैट इज़ वाई वो इन पीजेंट से कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बदले में तुम हमें पैसे दोगे. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irritating. It was irritating to the peasants
एंड मीनी साइंड विलिंगली। तो बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स थे जिनके लिए परेशानी का सबब था, इरिटेटिंग फैक्ट था। दे साइंड विलिंगली, तो इच्छा से इन्होंने सिग्नेचर कर दिया। दोज हु रेसिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, और जो लोगों ने विरोध किया उन्होंने वकील कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने ठग हायर कर लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब उसी टाइम इनको पता चल गया, उन इलिटरेट अनपढ़ पीजेंट्स को, कि बिकॉज ऑफ जर्मन सिंथेटिक इंडिगो ये ट्रीटी हो रही, उनको पहले पता नहीं था, उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि ये तो हमारे साथ गलत हुआ, तो अपना पैसा वापस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और यही वो टाइम था जब गांधी जी चंपारण में आते हैं। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, शुरू करते हैं वो अपनी कार्यवाही। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। First, he visited the secretary of the British Landlords Association. First of all, he visited the secretary of the British Landlords Association. तो पहले सेक्रेटरी से मिलते हैं, सचिव से मिलते हैं। The secretary told him that they could give no information to an outsider. There, the secretary told Gandhi ji that he could not give any information to an outsider like Mahatma Gandhi. Gandhi answered that he was no outsider. Next, Gandhi ji called on British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. फिर वो मिलते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। द कमिश्नर, एज गांधी जी रिपोर्ट्स, कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविद टू लीव तिरहुत। वो जो कमिश्नर था वो इनको डराता है, प्रोसीडेड टू बुली हिम एंड एडवाइज्ड, he was trying to threaten as if he was weak, thinking he was weak. So he tried to bully him and advised him forthwith to leave तिरहुत। और क्या बोला, क्या सलाह दिया कि आप तिरहुत छोड़ करके चले जाइए। That's all in this video. Stay tuned for the second part. Thanks for watching.